ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼। ਮੈਂ ਹਾਂ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਲੱਗੀ, ਜੰਗ ਰੁਕੀ, ਪਰ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੋ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਕਰਨਲ ਸੋਫੀਆ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਤੇ ਵਿੰਗ ਕਮਾਂਡਰ ਵਿਓਮਿਕਾ ਸਿੰਘ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਵਾਂਗ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਵਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਖੈਰ, ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਭੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਵੀ ਸਖਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਦ ਤੇ ਬੈਠਾ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਤੇ ਘਟੀਆ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਨਲ ਸੋਫੀਆ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਇੰਨੀ ਗਲਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇੰਨਾ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਲ ਸੋਫੀਆ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸ਼ਖਸ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਪੁੱਛ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਸੁਹਾਗ ਨੇ ਉਹ ਜਾੜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਤੇ ਘਟੀਆ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕੀ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਹਰਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਐਕਟਿਵ ਹੋਇਆ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ FIR ਦਰਜ ਕਰਵਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਿੰਨੀ ਘਟੀਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਟਰ ਵਰਗੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਰਨਲ ਸੋਫੀਆ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਏ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਨੇ ਵਿਜੇ ਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਗਟਰ ਵਰਗੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗਟਰ ਵਰਗੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਅਜਿਹਾ ਮੰਤਰੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹਾਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ। ਅੱਗੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਉੱਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਹਿ ਕੀ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਸਿਰਫ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਫ਼ਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋ ਬੋਲ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਖੁਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸਖਤੀ ਦਿਖਾਈ ਕਿ 4 ਘੰਟੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇਕਰ FIR 4 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੈ ਤੁਸੀਂ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇੰਨਾ ਸਖਤ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਕੀ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ FIR ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਘਟੀਆ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੁਣੋ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। हर झोपड़ी और हर खोपड़ी में हलवा होना चाहिए। हलवा मतलब दूसरों के लिए जीना, समाज के लिए जीना। जैसे हमारे मोदी जी समाज के लिए जी रहे, समाज के लिए जान लगा रहे, और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा,
और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी एसी की तेजी करने हमारे जहाज से उनके घर गए। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर से अगर कोई ले सकता है, और उन्होंने कहा था घर में घुस के मालूम घर में घुस। तो ये बोल तुसीं मंत्री साहब दे सुने। मंत्री साहब अपना जो दायरा सी वो भुल गए सी, शब्दावली तो भुल ही गए सी, ते उन्होंने वो की बोल रहे ने लोगों सामने, किस तरह वो व्यवहार दिखा रहे हैं, वो तुसीं सुन ही लिया। इस तो बाद हाई कोर्ट ने कहा कि जो FIR का डेडलाइन दी सी, FIR हो भी गई क्योंकि हाई कोर्ट इस दे विच इन्वॉल्व है। हाई कोर्ट ने 3 धारावां के तहत कहा कि FIR दर्ज की जानी चाहिए है। तो सब तो पहली धारा की है, भारतीय न्याय संहिता जिहड़ा पहला IPC हुंदा सी BNS 152, उस दे मुताबिक यह है कि भारत की एकता अखंडता नूं खतरे विच पाउण दा काम कीता है मंत्री साहब ने। इस दे विच इन्हां नूं कि जे हाई कोर्ट इस दे विच सख्ती होर वरतदा है तो मंत्री साहब नूं 7 साल की सज़ा हो सकती है, उम्र कैद की भी हो सकती है सज़ा, यानी कि मंत्री साहब लंबा फस सकते हैं अपने एक गैर जिम्मेवार बयान नूं लैके। अगली धारा किहड़ी लगी है? अगली धारा लग रही है BNS 196B, मतलब धर्म जात अते भाषा के आधार पर समाज में वंडियां पाउण दा काम कीता है। तो ये कोशिशों के तहत जेकर ये दोषी पाए जाते हैं, हाई कोर्ट फैसला सुनाता है तो 3 साल की सज़ा और जुर्माना दो ही हो सकते हैं मंत्री साहब नूं। इस तो बाद चलते हैं तीजी धारा जी लाई है इन्हां ते BNS 197(1)C, इस दे तहत आउंदा किसी समाज व्यक्ति प्रति अजिही भावना रखना जो देश की एकता ते अखंडता खतरे विच पावे, इस दे लई इन्हां नूं 5 साल की सज़ा हो सकती है। मतलब जे कानून काम करे सीधी तरह तो इन्हां दे खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि इन्हां तो ये उम्मीद नहीं की जाती कि तुसीं एक जिम्मेवार अहुदे ते बैठ के इन्नी घटिया शब्दावली की वरतों करो। खैर इन्हां नूं जदों इस गल का एहसास होया कि मैं कुछ गलत बोल बैठा तो ये मीडिया सामने आए भजे भजे, उत्थे कहते हुए कि देखो जो मैं क्या उस दे लई मैं माफ़ी मंगदा, पर माफ़ी मंगण तो बाद जो इन्हां दी खचरी जही हसी सी वो तुहानूं असीं तुहानूं जरूर दिखावांगे, क्योंकि ये मंत्री साहब उपरों उपरों माफ़ी मंग रहे हैं, अंदरों तो इन्हां दा जो सोचण दा तरीका उस तरह ही है। ये जो इन्हां दा बयान अगला सुनोगे माफ़ी वाला, ये सुन के तुहानूं लगेगा कि मंत्री साहब उपरों कुछ होर ने ते अंदरों कुछ होर ने। ये बयान जरूर सुनो। समाज और धर्म को भी अगर मेरी बातों से चोट पहुंची हो तो मैं 10 बार माफी मांगने को तैयार हूं। कांग्रेस हमलावर है, कांग्रेस कह रही है कि आपको इस्तीफा देना चाहिए। क्या कांग्रेस के बारे में कांग्रेस के मामले में कुछ भी नहीं कहना चाहता। तो तुसीं देखिया ये मंत्री साहब ने जिहड़े कि पहला पत्रकारां नूं कह रहे हैं कि देखो जी ये साडी भैणां वर्गी है तो असीं माफ़ी मंगते हैं, तो माफ़ी मंगण तो बाद जिवें ही कैमरे हटन लग जाते हैं, अक्सर इदां ही हुंदा जो पत्रकार पुछदे ने तो ये हसदे हुए ये नज़र आ रहे हैं कि मैं तो अपनी गल कह दी, बाकी जिसने जो समझना वो समझे। खैर इस तो बाद जो FIR दर्ज हो गई मंत्री साहब ते, तो मंत्री साहब ने माफ़ी भी मंग ली, पर सोचा कि मामला तो थोड़ा वादा जा रहा है, इस करके इन्हों ने ये नहीं कि मैं हाई कोर्ट जाके अपना गुहार लावां कि मेरे तो गलती हो गई है तो मामला शांत किया जाए। मंत्री साहब सीधा चले गए सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली पहुँच गए। सुप्रीम कोर्ट जाके की कहते हैं कि ये जो FIR दर्ज की गई है खारिज करवाई जाए, मैं इस दे खिलाफ इसनूं चुनौती देना हाँ। तो दिल्ली वाली जो सुप्रीम कोर्ट है उत्थे भी ये क्या जाए तो चपेड़ा खा के ही वापस आए। वो किवें आओ दिखाइए। ये सुप्रीम कोर्ट गए सी, विजय शाह मंत्री साहब सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट की कहता, सुप्रीम कोर्ट इन्हां दी गल सुनने तो बाद कह रहा है कि तुसीं किस तरह का बयान दे रहे हो, संविधानक अहुदा संभालण वाले शख्स तो एक मर्यादा की उम्मीद की जाती है। सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं इन्होंने जदों गुहार लैके गए सी, गंभीर स्थिति विचों मुल्क गुजर रहा है, हर शब्द जिम्मेवारी नाल बोलिया जाना चाहिए है, जाओ जाके हाई कोर्ट को माफ़ी मंगो। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने पुठे पैरी वापस करता कि जाओ हाई कोर्ट को दसो कि तुसीं की गलती की, साडे कोल आउण दी लोड़ नहीं। वो गल वख है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही इन्हां वालों रिक्वेस्ट करन तो बाद इन्हां दे वकील वालों 16 मई की तरीक रख ली कि चलो सुनवाई कर लांगे, पर सुप्रीम कोर्ट भी इस मुद्दे ते नाखुश है इन्हां तो। जदों मामला पक गया, अपोजिशन सामने आ गया, अपोजिशन कहता कि बई इन्हां नूं तां बर्खास्त कर देना चाहिए है। इन्होंने लग्या कि कुर्सी जाती दिख रही है, इस तो बाद ये मुड़ के कैमरे सामने आए तो इस बार इन्नी हलीमी नाल माफ़ी मंग रहे हैं कि शायद जो आदमी थोड़ा उस तरह के नरम दिल का होएगा कहेगा कोई गल नहीं मंत्री साहब तो गलती हो गई है, मंत्री साहब को माफ़ी मंग लीए तो इन्होंने माफ़ भी कर देना चाहिए। मंत्री साहब इस तरह माफ़ी मांग रहे हैं कि शायद इन्ना तो मासूम कोई ना हो। ये बयान भी सुन लो। हाल ही में मेरे दिए गए बयान से
जो हर समाज की भावना आयत हुई है, उसके लिए मैं दिल से न केवल शर्मिंदा हूँ, दुखी हूँ, बल्कि माफ़ी चाहता हूँ। हमारे देश की वो बहन सोफिया कुरैशी राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति और समाज से ऊपर उठकर उन्होंने जो काम किया है वो हमारी सगी बहन से भी ऊपर सम्मानित हैं। हमारी सेना और हमारे सोफिया बहन के साथी जितने भी जिन्होंने हमारी उन बहनों का बदला लेने के लिए, हिंदुस्तान का मान सम्मान रखने के लिए और हमारे विरोधियों को धूल चटाई है, मैं उनका सम्मान करता हूं। हाल के भाषण में जब मेरी इच्छा और मनसा यही थी कि मैं उनके बात को अच्छे से समाज के बीच में रखूं, लेकिन दुखी और विचलित मन से कुछ शब्द गलत निकल गए, जिसके कारण आज मैं खुद शर्मिंदा हूं और पूरे समाज से और समुदाय से माफी मांगता हूं। ਇਸ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਭੋਲਾ ਆਦਮੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਭੋਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਇੰਨੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੀ ਖੱਚਰੀ ਹੱਸੀ ਕਿਉਂ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਮਾਸੂਮ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨੇ ਮਾਸੂਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਐਮਪੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸੀਐਮ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। आओ ये दसिए की किया इन्होंने, इसी करके असं लिखा कदों सुधरोगे मंत्री साहब। ये कोई नवी गलती नहीं करती इन्होंने, मतलब कि अचानक गलती नहीं हुई, गलतियां का इन्हों का पूरी लिस्ट है। ये वड्डियां वड्डियां गलतियां, छोटियां मोटियां तो साडे ध्यान च भी नहीं होणगियां। साल 2013 की गल करिए तो शिवराज सिंह चौहान जो कि सीएम रह चुके हैं मध्य प्रदेश के, उन्हों की पत्नी खिलाफ ये भाई साहब ने विवादित टिप्पणी की सी। उस वेले इन्हों अपना अहुदा गवाना पै गया सी, मंत्री सी उस वेले भी। यानी कि एक बार का जो ये झंबे हुए सी उस तरह के बयान तो बाद सुधरे नहीं, मतलब सुधर नहीं सकते। 2013-25 चल रहा, सोच लो तुसी 12 साल हो गए। इस तो बाद फिर अगली गल कर लो, साल 2022 च एक ही कहते हैं राहुल गांधी का विआह नूं लैके इन्हों बहुत दुख सी कि राहुल गांधी का विआह क्यों नहीं हो रहा। 50-55 साल की उम्र हो गई, राहुल गांधी का विआह नहीं हो रहा। कोई कमी है राहुल गांधी च? अपने मुंडे का भी इन्होंने मिसाल दी सी, कहते कि मेरे मुंडे की उम्र तो 25 साल है, वह विआह कर दिता। जिहड़ा बंदा कामयाब होएगा, अवगुणा तो रहत होएगा, उसका विआह हो जाता, राहुल गांधी का नहीं हो रहा। इस करके इन्होंने इस गल की भी चिंता है कि राहुल गांधी का विआह क्यों नहीं हो रहा सी। इस नूं लैके बहुत चिंतित ते दुखी सीगे, इस करके इस तरह के विवादित बयान दिते सी। यानी कि एक मंत्री नूं होर कोई काम नहीं है, लोगों के विआह देखदा फिरदा है। खैर अगली गल करते हैं। इन्हां भाई साहब का 2023 च भी एक इल्ज़ाम इन्हां ते लगे सी, गंभीर इल्ज़ाम। विद्या बालन जो कि मशहूर अदाकारा ने बॉलीवुड के, तुसीं जाणदे होगे, उन्हां दी एक फिल्म की शूटिंग चल रही सी। मंत्री साहब की इच्छा हुई कि विद्या बालन नूं मिलिया जाए। विद्या बालन की मर्जी सी कि मैं नहीं मिलना मंत्री साहब नूं। मंत्री साहब ने उन्होंने शूटिंग रुकवा दी। ये हाल है मंत्री साहब का। उस तो बाद फिर विवादां दे विच आए सी। तो ये जिहड़े विवादां च कोई नवी गल नहीं है कि जो सोफिया कुरैशी नूं ये विवादां विच लैके आए है, पर इस मंत्री साहब नूं ये सोचना चाहिए है कि जो कर्नल सोफिया कुरैशी साडे मुल्क दीआं उन्हां धीआं वास्ते मिसाल बन गई है, व्योमिका सिंह मिसाल बन गई है, जिन्हां नूं देख के साडीआं धीआं कल नूं अपनी तांग रखणगियां कि असी भी अफसर बन सकते हैं, असी भी इन्हां वांग देश के वड्डे वड्डे ऑपरेशनस नूं लैके दुनिया सामने रख सकते हैं, ऑपरेशनस चला सकते हैं। पर अजिहे मंत्रियों की जो सोच है वो किते ना किते दुखी जरूर करती है। कर ये विचारा मंत्री करे भी की। हुण तुसीं कहोगे कि ये विचारा मंत्री किवें कह रहा मैं बड़ा जाहिल पत्रकार हां, इसनूं विचारा क्यों कह रहा जब इन्ना इस तरह के बयान दिंदा है। ये मंत्री साहब इस तरह के ने कि एक कुर्सी ते किवें, पहलां तो MLA किवें बने, कुर्सी ते किवें गए, उस तो बाद ये मंत्री बन गए। मतलब ये है कि चुनिया तो असी है ना, इस करके विचारा है। इस शख्स नूं असी इन्ने वड्डे अहुदे ते पहुँचा दिता अपनी वोट की ताकत नाल। गलती साडी भी है किते ना किते। असी वोट दे आउने, उस तो बाद असी पिटदे फिरदे हैं कि देखो जी मंत्री तो इस तरह का निकलिया, मंत्री तो उस तरह का निकलिया। गलती साडे तो शुरू होंदी है एक बटन दबण तो बाद। इस तो बाद अजिहे मंत्री सामने आउंदे ने। खैर तुहानूं ये वीडियो बंद करन तो पहलां दस दईए कि ये मंत्री साहब अनपढ़ भी नहीं हैगे। ये मंत्री साहब MA हिस्टरी ने, पूरा इतिहास जानते हैं, पर जो वर्तमान है उस दे विच इन्हां दी जुबान इन्नी फिसलदी है कि बाद चों जाके माफिया मंगते फिरदे ने। पर इस बार शायद हाईकोर्ट जिन्ना सख्त है, इस बार इन्हां नूं हाईकोर्ट छड्डेगा नहीं। तो हो सकता है कि इन्हां दे खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई होवे। कुर्सी कदों जाती है ये इन्हां दी BJP सरकार MP वाली तय करेगी। हर झोपड़ी और हर खोपड़ी में हलमा होना चाहिए। हलमा मतलब दूसरों के लिए जीना, समाज के लिए जीना। जैसे हमारे मोदी जी समाज के लिए जी रहे, समाज के लिए जान लगा रहे, और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे वही कटे पिटे लोगों को
हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार